सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था अगस्त मंथ। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जुलाई मंथ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 till 1st July and the new policy will replace the existing national policy 2001. So which statement is correct? Both are correct. Union Cabinet has approved National Sports Policy on 1st July 2025. This is a landmark initiative aimed at reshaping the sports landscape of the country and empowering people through sports. न्यू पॉलिसी जो है रिप्लेस करेगी एग्जिस्टिंग नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 वाली, ठीक है। और कौन से 5 पिलर हैं जिन पे ये बेस्ड है? तो एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, स्पोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गेम्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एज अ मास मूवमेंट, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, NEP 2020। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Indian Navy commissioned INS Tamal F-71 into the Western Naval Command on 1st July 2025 at Yantar Shipyard, Kaliningrad, Russia. INS Tamal is 8th multi-role stealth frigate in the project series and the second of the additional follow-on ship of the Tushil class. So which statement is correct? So both are correct. तो फर्स्ट इज करेक्ट इज इंडियन नेवी कमीशन INS Tamal on 1st July 2025 at Yantar shipyard in Russia in the presence of Vice Admiral Jasjit Singh, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command. INS Tamal is the 8th multi-role stealth frigate in the project series, ठीक है। The first ship of Tushil class was commissioned on 9 December 2024, presence of Defense Minister। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उदयगिरी द सेकेंड stealth frigate of Project 17A built at Majgaon Dock Shipbuilders Limited MDSL yard was handed over to the Indian Navy on 1st July 2025. It is the third ship of the project after the Shivalik class frigates already in service. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो फर्स्ट इज करेक्ट। यार्ड नंबर 12652 द सेकेंड स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A built at MDSL was delivered to Indian Navy on 1st July. It is the second ship of project after Shivalik class. उदयगिरी इज द सेकेंड ऑफ द 7 प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये देख लेते हैं कि जो उदयगिरी इज द मॉडर्न इनकारनेशन of its predecessors INS Udayagiri, which was a steam powered frigate. It was decommissioned on 24 August 2007, rendering 31 years of glorious service to the nation. Consider the following statement and choose the incorrect one. तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू इन्हांस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस all sector with special emphasis on the manufacturing sector. And second is, under this scheme, while first time employer will receive 1 month salary up to 15,000, employer will be given incentive for a period of 2 years for generating additional employment. तो both are correct, तो neither one and neither two. So Union Cabinet has approved ELI scheme to enhance employment generation, employability and social security. Under the scheme, while the first time employee will get 15, ये हमने अभी स्टेटमेंट में देखा ही था। तो ये जो स्कीम है इसको इन द यूनियन बजट 24-25 में अनाउंस किया गया था विद द पैकेज ऑफ पार्ट ऑफ PM पैकेज ऑफ 5 स्कीम विद द टोटल बजट आउटले 2 लाख करोड़। इसके बाद हम देखेंगे ELI स्कीम जो है एम्स क्या है, तो स्टिमुलेट द क्रिएशन ऑफ
over 3.5 crore jobs in the country over a period of 2 years, with an outlay of 99,446 crore. Of this, 1.92 crore beneficiary will be first-time entrant into the workforce. The benefit of the scheme will apply to employment generated between August 1st 2025 to 31 जुलाई 2027. इसके बाद हम देखेंगे 5th क्वेश्चन. तो इसमें हमें स्टेटमेंट है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री C.R. Patil today inaugurated the integrated flood forecasting system C-FLOOD. C-FLOOD is a web-based platform that provides flood forecast up to 10 days in advance down to village level in the form of flood. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट. प्रेडिक्शन जो है वाटर लेवल प्रेडिक्शन. तो यूनियन जल शक्ति जो मिनिस्टर है हमारे C.R. पाटिल, उन्होंने इनॉग्रेट किया था. किसके लिए? तो फॉर द C-FLOOD जो है इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है. इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे एंड सेंट्रल वाटर कमीशन CWC डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन DOWR, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. C-FLOOD इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फ्लड फॉरकास्ट अप टू 2 days इन द एडवांस अप टू विलेज इन लेवल इन द फॉर्म ऑफ फ्लड वाटर लॉगिंग मैप्स एंड वाटर लेवल प्रेडिक्शन. प्लेटफॉर्म एक्ट करेगा एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फ्लड मॉडलिंग आउटपुट्स फ्रॉम नेशनल एंड रीजनल एजेंसी. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका भी कुछ पार्ट रह गया, उसे देख लेते हैं. द प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज अ इंटीग्रेटेड, देख लिया हम लोगों ने, फॉर डिजास्टर. करेंटली सिस्टम कवर क्या कर रहा है, महानदी, गोदावरी एंड तापी रिवर बेसिन को कवर कर रहा है. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. द C-FLOOD प्लेटफॉर्म यूजेस एडवांस 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग टू स्टिमुलेट फ्लड सिनेरियोज. इसके बाद हम देखेंगे 6th क्वेश्चन. तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023, 2022-3 एंड 2023-24. तो द एवरेज डेली कैलोरी इनटेक पर कैपिटा in rural India was 1233 calorie and 1212 calorie in the year, ठीक है, 2023 and 2024 respectively, while in urban India these figures for these 2 years were 225 calorie and 2240 calorie. तो which is correct? तो second is correct. I think correct ही पूछना था. हाँ, तो information on the food consumption by a household member is collected by through back-to-back household consumption expenditure survey SCHCES conducted during specified reference period during August 2022 to July 2023 and August 2023 to July 2024. This report contained detailed estimate of per capita energy, protein and fat intakes and their distribution across household and individuals. तो इसके बाद सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था इन द एवरेज पर कैपिटा एंड पर कंज्यूमर यूनिट कैलोरी इनटेक इन इंडिया, मतलब अर्बन एंड रूरल दोनों में 2023-2024 में. एवरेज कैलोरी इनटेक पर कैपिटा पर डे इन रूरल इंडिया कितना है, 2233 कैलोरी एंड 2212 कैलोरी इन द ईयर. ठीक है, वाइल अर्बन में कितना है, 2250 कैलोरी किलो कैलोरी एंड 2240 किलो कैलोरी फॉर दिस 2 ईयर. एवरेज पर कैपिटा पर डे एंड पर कंज्यूमर यूनिट डे कैलोरी इनटेक फॉर द बॉटम 5 फ्रैक्टाइल क्लासेस इन रूरल इंडिया is projected to increase from 2022 to 2023, while the bottom 6 fractile classes in the urban areas are projected to increase from 2023-4. Wide variation are observed in both average per capita calorie intake per day and average
per consumer unit per day calorie intake across. With the increase in monthly per capita consumption expenditure, the average calorie intake also increases in both sector. ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है. मैंगो प्रमोशन इवेंट इंडियन मैंगो मैनिया 2025 organized in Abu Dhabi. It is organized by Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority under the Ministry of Commerce and Industry. तो both are correct. Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority APEDA under the Ministry of Commerce and Industry organized a mango promotion event. कहाँ किया था? अबू धाबी में. ठीक है, to enhance the global presence of Indian agricultural products, especially mango. The event marked the launch of Indian Mango Mania 2025, a vibrant in-store mango festival organized in collaboration with the Indian Embassy in the UAE and Lulu Group. The finest variety of Indian mangoes on display include GI tagged and regional specialities such as Banarsi Langra, Dasahari, Chausa, Sundraja, Amrapali, Malda, Bharat Bhog, Prabha, Shankar, Lakshman Bhog, Mahmood Bhar, Vrindavani, Fazli and Malika. 8th question is, consider the following statement and choose incorrect one. Remount Veterinary Corps, RVC Center and College Merit Cantonment, UP. Recognized by World Organization for Animal Health on 3rd July 2025. India has been free from African horse sickness since 2024. So, which statement is incorrect? So, both are correct. In a significant step toward animal health system and international trade facilitation, the country has established and secured global recognition for its first equine disease-free compartment (EDFC), recognized by WOAH on 3rd July. ठीक है, EDFC जो है has been officially EDFC has been officially declared free from. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, वेयर डिड यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह अनवील द स्टैचू ऑफ श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम. तो कहाँ किया? पुणे में. ठीक है, तो पुणे में किया है. इट इज़ नोन दैट पेशवा बाजीराव fought 41 wars in 20 years and won all of them. इन्हीं पे शायद वो जो मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, इन्हीं पे बनी है. विच यूनियन मिनिस्टर वॉर रिसेंटली ऑनर्ड विद द कलिंग रत्न अवार्ड 2024? तो धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र प्रधान was honored for his commitment to educational reform and effort to uplift Indian languages. ठीक है, it is an educational cultural honor. It is given every year since 2007. ठीक, इसके बाद 11th नंबर है. तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हैंडेड ओवर फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट diving support vessel Nistar to Indian Navy. This process was held at Visakhapatnam. तो both are correct. Hindustan Shipyard Limited handed over first indigenously built diving support vessel Nistar to Indian Navy in Visakhapatnam. This warship has been designed and built as per Indian navigation. This ship is highly specialized and can carry out deep sea diving and rescue operation. Name of the ship is derived from Sanskrit word Nistar which means liberation, rescue और salvation. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन. तो वेयर हैज़ एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 सेशन बीन इनाग्रेटेड? दिल्ली. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कॉरपोरेट अफेयर श्री हर्ष मल्होत्रा इनाग्रेटेड इंडियाज़ एनर्जी स्टोरेज वीक 2025. कहाँ? यशोभूमि, दिल्ली में. तो गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जनरेटिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगी इंडियाज़ कमिटमेंट टू अचीविंग नेट जीरो टारगेट बाय 2070. उसके बाद है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन द ईयर 2024. Maratha military landscape of the country
has been included in the UNESCO World Heritage List. A total of 12 kilo are included under this statement, which is located in Maharashtra. India has been a member of World Heritage Committee for 2021-2025. Ignore it. तो ऑप्शन सी 1 and 3 इज़ करेक्ट. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. ठीक है, उसके बाद स्पैनिंग फ्रॉम 17 to 19 सेंचुरी दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेटवर्क जो है 12 फोर्ट रिफ्लेक्ट कर चुका है. ठीक है, इसके बाद आप PDF में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. Aim of incorporating these heritage sites into the UNESCO list is to preserve and promote and shared heritage based on outstanding universal value. इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. तो कौन सा, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन. ग्रुप कैप्टन शुक्ला became the first Indian to fly the International Space Station on the Axiom 4 commercial mission. They returned to Earth. तो हम कहाँ पे थे? शुक्ला जी को पढ़ रहे थे हम लोग, I mean जो गए थे स्टेशन पे. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कैप्टन शुक्ला इंडियन एस्ट्रोनॉट एंड की मेंबर ऑफ 4 मैन एक्सियोम 4 कॉमर्शियल मिशन में जो थे. ठीक है, इनका पूरा नाम देख लेते हैं. शुभांशु शुक्ला था, सभी को पता है लगभग. ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रधानमंत्री धन्य दान कृषि योजना फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर. ये हम लोगों ने जब बजट डिस्कस कर रहे थे तो पढ़ा था, तो शायद आप लोगों को याद हो. दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 100 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 25 to 26. 100 डिस्ट्रिक्ट थे, आपको शायद याद हो. Inspired by the aspirational district program of Niti Aayog, PM Dhanya Dhan Krishi Yojana is the first specific theme focused on agricultural and allied sector. This scheme is in line with the announcement of development of 100 districts under the PM Dhanya Dhan Krishi Yojana in Union Budget. तो which statement is correct? All of the above. Okay. इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बजट में डिस्कस कर ही लिया है, तो दोबारा नहीं करेंगे. हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू विन 5 वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल टाइटल. इसको भी हम लोग देख चुके हैं, दिव्या देशमुख. इसका अगस्त में भी एक क्वेश्चन था. तो 19 ईयर ओल्ड दिव्या देशमुख, इसका भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, तो फिर से रिपीट करने का कोई पर्पस नहीं है, बट इतना देख लेते हैं. इन द ऑल इंडियन फाइनल हेल्ड कहाँ हुआ था? बाकू में. ओके, 17 नंबर पे आते हैं. व्हेन वाज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA एंड साइन बिटवीन इंडिया एंड UK. तो कब हुआ? 24 जुलाई 2025. फिर 18 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं. विच इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ बिन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली इन लद्दाख. तो ये है आकाश प्राइम. इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड आकाश प्राइम मिसाइल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट इन ईस्टर्न लद्दाख. ठीक है, डेवलप्ड कहाँ से? डेवलप्ड देखो, ज़्यादातर जो डिफेंस सेक्टर वाले डेवलपमेंट होते हैं वो DRDO करता है मैक्सिमम में. ओके, फिर हम आते हैं 19 नंबर पे. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ज्ञान भारतम मिशन. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो इसको हम स्किप करेंगे, बट आंसर देख लेते हैं. डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट एंड क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी. फिर हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे. तो द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है हमारी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय महुआ एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. एट दिस 21 सुपर क्लीन लीग सिटीज़ वर अवॉर्डेड. तो विच आर करेक्ट? फर्स्ट इज़ करेक्ट. तो 23 ली हुई हैं. ठीक है, देख लेते हैं. बाकी तो फर्स्ट इस स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 21 की जगह 23 है. ठीक है, 21st क्वेश्चन पे आते हैं. प्रयागराज अवॉर्डेड बेस्ट गंगा सिटी अवार्ड, दानापुर कंटोनमेंट अवार्ड एज बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड. तो ओनली 1 इज़ करेक्ट. तो देख लेते हैं कंटोनमेंट बोर्ड में किसको मिला है? सिकंदराबाद को. ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं, बट ओके. फिर आता है 22nd नंबर.
PM Modi led the foundation stone inaugurated and dedicated to the nation development project worth over 7,000 crore in Motihari, Bihar. Bihar government has recently increased the monthly pension of the elderly, disabled and widow mother 400 to 800. तो which is correct? B. Only 2 is correct. ठीक है. PM नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन जो था मोतिहारी बिहार में किया था, ठीक है, उसमें 400 करोड़ है, 400 करोड़ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड. बिहार गवर्नमेंट ने 400 से 800 नहीं किया है, 1100 किया है. व्यवहार देते हैं ना जैसे हम लोग शगुन के तौर पे 1100 रुपये, वैसे ही. फिर आते हैं 23rd नंबर पे. तो PM मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर द 50,400 करोड़. ओके. दुर्गापुर वेस्ट बंगाल एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ BPCL सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इन बांकुरा एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एट अ कॉस्ट ऑफ 1950 करोड़. तो बोथ आर करेक्ट. ठीक है. इसके बाद आता है कौन सा करेक्ट है. द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS +20 हाई लेवल इवेंट 2025 हेल्ड इन जुनेवा स्विट्जरलैंड फ्रॉम 7 to 11 जुलाई. तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो 11 जुलाई को उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है. इसकी थीम आप कमेंट कर सकते हैं 2025. ठीक है. अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन विद अ प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द. ठीक है. तो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही थी. मेरी पंचायत रिसीव किया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैम्पियन अवार्ड अंडर द एक्शन लाइन कैटेगरी. माई पंचायत एप्लीकेशन इज़ रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. यार सॉरी. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है 1 and 2 आर करेक्ट. तो माई पंचायत एप्लीकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रन नहीं करती है, तो इसे देख लेते हैं. ओके. ठीक. ये हम लोगों ने देख ही लिया है. इसके बाद हम आते हैं 25th नंबर पे. तो माई पंचायत जो ऐप है गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज़ पंचायत एम्पावरिंग. ठीक है. उसमें 25 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2.65 लाख ग्राम पंचायत एंड नियरली 95 करोड़ रेजिडेंट ऑफ रूरल रेजिडेंट इन इंडिया है. ठीक है. ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसके बाद हम देखते हैं 26 नंबर. तो रिसेंटली नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है इंडिया की NCX 2025 हैज़ बिन ऑफिशियली इनॉग्रेटेड. मेन थीम क्या है? एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस. तो बोथ आर करेक्ट. ठीक है. तो मतलब ये है कि नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ऑफिशियली इनॉग्रेटेड हुई है और थीम क्या थी? एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस. देखो जो थीम होती है इम्पॉर्टेंट होती है, तो थीम तो ध्यान रखना ही है भाई साहब. तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन इंडिया वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र. कौन है? TV रविचंद्रन जी. इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस चांसलर ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर Dr. Bimal N. Patel. The exercise is being conducted by the National Security Council Secretariat NSCS in the collaboration with the National Defense University. The exercise marks a major step forward in India's cyber security posture with the overreaching theme. थीम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. आगे देख लेते हैं 26 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025. तो UAE होस्ट करेगा. ओके. तो इससे पहले किसने होस्ट की थी? फ्रांस ने. इस बार UAE करेगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड. तो कहाँ हुई है टेस्ट? चेन्नई में. इसके बाद आता है 28 नंबर. वेयर वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र
स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। कहाँ स्टार्ट हुई है? जोधपुर में। इसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके आई एम सॉरी, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया? ये तो पता ही होगा यार, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, कहाँ कर रही है देखना है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कहाँ करे, तो ये कहाँ करेगी? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हु चेयर द 48th मेंबर नेशनल कमेटी दैट ड्राफ्टेड द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। तो किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभाकर। तो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर जो है सुरेश खन्ना है, ये है यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभाकर। ठीक है, तो इसी के साथ हम देख लेते हैं अनाउंस किसने किया था? अमित शाह ने, सॉरी मिनिस्टर श्री अमित शाह ने। तो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी अनाउंस की थी इन्होंने। इवेंट किसमें? अटल अक्षय ऊर्जा भवन, न्यू दिल्ली ऑन 24 जुलाई 2025। 48 मेंबर जो थे नेशनल लेवल कमेटी में, चेयर्ड बाय द, ये अभी देखा, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है प्रिपेयर की है। कमेटी इंक्लूडेड मेंबर फ्रॉम नेशनल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन। इसके साथ ही हमारा जुलाई मंथ का भी ख़त्म होता है, तो आगे भी बहुत सारा कवर करना है हम लोगों को। जून, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जून। ओके, आज के लिए इतना ही।